you also served up, or Major Sudhir Walia had served together, no sir? How was your interaction with him? Because generally, yeah, Bijay, I didn't go into operations with him. As I told you, okay. it was a small valley. वो ऑपरेशनल या राजवाड़े या लोलाब कोई हंटिंग ग्राउंड होता था उस जमाने में सबका. So you would find a 10 SF team passing through, you'd find a 9 para troop coming in, you'd find our chaps going in, then mixing around and sitting around. So I would run into him off and on. And personally, he was a friend. There's no doubt about it. And he, while he was still operating, had already notched up quite a few kills. And as I've said before also in some other podcasts, a lot of it is here. आप कितनी मेहनत कर लीजिए जिंदगी में, वक्त के पहले और नसीब से ज्यादा ना मिला ना मिलेगा. And luck is a very strange thing in combat. जिंदगी में बाकी जगह तो लक ठीक है, आपकी बुरी है तो आप प्रमोशन स्लो हो रही है, बोनस कम मिल गया, इस हाइक कम मिल गई, जिंदगी में कुछ और नहीं होगा. लेकिन एज अ कॉम्बैट सोल्जर आपकी लक अगर खराब हो जाएगी तो आपकी जिंदगी जा सकती है. या ना, he was A, lucky, B, he was one of those natural fighters, which in the old Wild West, a man like him would have been called a killing gentleman. Oh. Very fine term, eh? He was a killing gentleman. He was a thorough gentleman, very soft-spoken. You would never, if you met him, ever guess that this man could be so calm, so cool, and so brave in combat. And because they'd been operating in the valley for so long, they'd understood the mechanics of how and where. And the whole methodology had been taped out. So 9 para had tremendous amount of experience there. Plus the intelligence was good. Plus his thresholds. Everybody's thresholds of taking risk are different. His threshold was much higher. And that goes by pushing your luck. It's simple human nature. आप push करो अपनी luck, you get away with it. फिर आप और push करो, you get away with it. Then at some stage you'll say, boss, अभी कुछ नहीं हो सकता. मैंने वहाँ इतना risk लिया, मैंने वहाँ. He was constantly pushing his luck. But his explanation to me was very different. He says that when I asked him, he says, मेरे तो यार बड़े calculated risk हैं. कोई risk है नहीं actually. यार close combat में अगर fire खुलेगा, he's equally surprised, he's equally nervous. I am more trained. I fire better than him. Now, worst case scenarios, गोली लग जाएगी मेरे हाथ में, मेरी टांग में, मेरा हेडशॉट लग जाए यार, इतना तो बहुत ही ज्यादा बुरी लक होगी ना यार. सप्रू हेडशॉट लग जाए तो एक चांस लेनी होती है यार, टांग में लग जाए, हाथ में लग जाए. By and large, both of us draw together, I'll be faster. So his way of looking at it was that I know aggression in combat pays, and if I'm aggressive, I found his risk-taking ability was very high. And I give you a small example, if there is time, of the difference. एक joint operation कर रहा था with another sister organization. तो उनका एक ट्रूप था, मेरा एक ट्रूप था. बर्फ पड़ी हुई थी लोलाब में. There is a place called Dardpura. Bad reputation. A battalion had been pushed back once. एक ही रोड एंटर करती थी, a track, पहाड़ तीन तरफ, जंगल, बीच में गांव. एक battalion was pushed back once because they would fire from all bloody sides. और बैठते थे वहाँ, अड्डा बना हुआ था. So रात को बर्फ में, both of us, 2 officers and our troop, we went into this village. और जियारत थी बीच में गांव के. वहाँ हमने बेस बना लिया. और सुबह जो स्नाइपर था, या तो सुबह उतरते थे नीचे गांव में, या रात को वापस जाते थे. द मूवमेंट यूज्ड टू बी लाइक दैट. सुबह स्नाइपर ने बोला कि सर जंगल से नीचे उतर रहा है कोई. So the lead scout came out, and this must have been about 400 meters. गांव के एज से वो पहाड़ शुरू हो गए, वो जंगल आया है. तो a figure came out from the forest. आके वो पेड़ के नीचे वहीं पे एज पे आके बैठा, गांव को देखता रहा. तो बोला सर एंगेज करूं? वो बोला नहीं, एंगेज मत करना, पीछे आएगा, अभी माल और उतरेगा. लीड स्काउट आया है, गांव को देख रहा है, देखने दे. We held back our fire thinking he'll come down. He clearly, somebody must have signaled
लाल कपड़ा लगा देना, चिमनी में धुआं निकाल देना, अगर फौज आ जाती है पता तो लग ही जाता है फौज बैठी है आके जियारत के अंदर यार, बर्फ में निशान होते हैं, वो मिटाओ कितना कुछ भी करो। सो एनीवे, सो वही थोड़ी देर बैठ के देखता रहा, उसके बाद ही वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट। 15-20 मिनट तक हुआ, आधे घंटे वेट किया, कोई नहीं आया। हमने कहा खेल खत्म हो गया। तो बोथ ऑफ अस गॉट आउट। बुड्ढा आ रहा था एक, तो बुड्ढे से पूछा यार उतर रहे हैं? बोला हाँ। बड़ी बात क्या है, अभी आप निकलोगे यहाँ पे, फिर नीचे उतर आएंगे सबके सब, यहाँ चाय पियेंगे बैठ के। आधे पाकिस्तानी हैं, बाहर के मेहमान मुजाहिद हैं, बाकी लोकल लड़के हैं, ये अड्डा बना हुआ है। तो बोला यार कहाँ है? बोला यहाँ हाइड आउट है, इधर हाइड आउट है, किधर हाइड आउट है? बोले ले जाएगा? बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं दिखा देता हूँ कहाँ। सो वी वॉक्ड विद हिम टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन वाज स्टार्टिंग एंड देयर वाज वेरी क्लीन, पुरानी बर्फ थी तो वेरी क्लीन डिस्टिंक्ट फुट मार्क्स बने थे, ऊपर जा रहे थे ऐसे करके एंड डिसअपीयरिंग इनटू द फॉरेस्ट, स्टीप क्लाइंब। बोलता है ये दिख रहे हैं जब पैर के निशान, इनको फॉलो कर लो, जहां ये खत्म होगा इनका मालिक मिल जाएगा आपको, फायर खुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, मौसम खराब हो रहा था, बर्फ पड़नी शुरू हो रही थी, अपहिल फाइट थी, कितने हैं ये नहीं पता, कैजुअलिटी हुई तो चॉपर नहीं आएगा। अब खड़े हैं दोनों पेड़ के पीछे, ये पता है कि यहाँ माल बैठा। मैंने कहा हाँ भाई बताइए पंडित जी क्या करना है फिर? बोला सर अभी चल सकते हैं ऊपर, लेकिन अपहिल फाइट है ये। फिर अपहिल फाइट तो मैंने कहा अपहिल फाइट है। तो बोला आधी आधी बर्फ है, यहाँ तो घुसी हुई बर्फ, मूवमेंट नहीं, फायर खुलेगा तो मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं। अब देखिए नेगेटिव देनी शुरू कर दी दोनों ने एक दूसरे को, है। और मैंने कहा कैजुअलिटी हुई तो चौपर नहीं आएगा, यहाँ से हाथ पीठ पे उठा के ले जाना पड़ेगा, मरा तो मैं कहा पंडित जी बोलो अब। फाइनली आ गए, कल आके मारेंगे, पहाड़ के ऊपर से आएंगे। नाउ another chap, and I know a few of them, they are friends of mine, some dead, some still alive, wouldn't have thought 2 seconds, they wouldn't have, and Sudhir Walia is one of them, he wouldn't have said, डिस्कशन का कुछ तुक ही नहीं था यार। आदमी बोल रहा है आपको यहाँ पे ऊपर फॉरेस्ट में हाइड आउट है, वहां बैठे हुए हैं मिलिटेंट्स, तो फिर पीछे किस लिए रुकना है यार, चला जाता। ये फर्क है। और जब आप ये करते हैं तो आपको माल मिलता है। Mal means, you get your kills, but you also run the risk. Very true, sir. You run the risk. So, it's a risk and reward game. It's an efforts game. It's a luck game. But as I said, I was cautious. I was always thinking, I'm not going to finish jihad in today, tomorrow. I have to take back people who are serving with me. So, too many. I shouldn't do this. I shouldn't do that. Everything has to be nice and comfortable in a combat situation कि आप बैठे हैं फिर सामने से कोई आ जाए तो आपने गोली मार दी, वो कभी कभी होगा। But most of the decisions will come like this when you have to step out of cover and face it. तो वहां कौन निकल के बाहर करता है, कौन नहीं करता है। Sudhir Walia was one of those men यार। His stories were unique. एक बार बोलता मैं पीछे भागा किसी आदमी की, ऐसी एम्बुश में बैठे हुए थे, पहला लीड स्काउट हुआ है, मैंने फायर नहीं करा, पीछे वाला कोई आया ही नहीं, वो अकेले ही था लड़का। तो बोलता मैंने कहा ले यार एक चांस थी, वो भी चली गई। तो बोलता मैं भागा नीचे, गांव में एंटर करने वाला था उसके पहले मैंने मिला, मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, ऐसे करके बात कर रहा है। कैन यू इमेजिन? वो मुड़ा तो ठोका साले को यार, गांव के पास ठोका यार, सपरू यार ये। मैंने कहा मतलब अब आप बताइए, आप सोचेंगे क्या करना है, मैं बैठूं एम्बुश में, उसके बाद भी हथियार है, मिलिटेंट है, 3 और हो सकते हैं। Once you allow your mind to start painting scenarios, there's so many things that can go wrong. Get you killed, your men killed. But these men take immediate decisions. They do some calculations in their mind. They take their chances. Sometimes the chance goes wrong. The consequences are very, very severe. Very severe. Oh, God bless him. God bless the man. अभी सुधीर की मैं बताऊं, पहली बार मैं इसको मिला वहां पे, ये पोस्ट कमांड कर रहा था, बच्चा था, प्लेस कॉल्ड रोड जंक्शन इन श्रीलंका में। I joined the SF before him. He joined 9 para later. And I remember going to his post, we were attached and I was going out. तो मुझे मिला ये, तो उस जमाने में इसका देखिए थिंकिंग। मैंने कहा सुधीर तेरे पास तो यार 25 आदमी है सिर्फ। तो बोलता यार जब मैं निकलता हूँ, मैंने शुरू से आते ही मैंने एग्रेशन दिखा दिया है। मेरे पहले कोई और ट्रूप्स थे, उनके 10 आदमी मार दिए थे यहाँ पे, तो मैं तो आते ही यहाँ पे
पेट्रोलिंग शुरू करती ज़्यादा। और जब भी मैं निकलता हूँ मुझे पता है इन अफ्रीका में जो होते हैं वो यहाँ पे तो मैं वॉलीबॉल खिलाता हूँ और कहता हूँ शोर मचाओ, वॉलीबॉल ऐसे करके बिहेव करो जैसे यहाँ लोग बहुत हैं। And you know, so some of the other things that he discussed, I could see there is a mind which thinks differently. And sure enough, you know, he moved from infantry into SF, which gave him a chance to think laterally instead of thinking straitjacket. True.